Good morning, children. Today we are going to continue with chapter number 4, Practical Geometry, and this is the part 2 of chapter 4. Now, in the first part, you learned some basic concepts of making angles without using protractor. I hope it was clear and you have learned it, you have practiced it. So, now we are going to start with the exercise. But before starting the exercise, let's see some rules for constructing a quadrilateral. That is, the criteria given in this chapter for constructing a quadrilateral. Here on the screen, you will be seeing some points are given. The first one in this chapter is when four sides and one diagonal are given. फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी या फिर फर्स्ट जो हम सीखेंगे वो हो जाएगा फोर साइड्स एंड वन डायगोनल के बेसिस पर कंस्ट्रक्शन. द सेकेंड वन इज व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन. ऐसा भी होगा कि दो डायगोनल्स और तीन साइड्स दिए होंगे. द थर्ड वन इज व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर गिवन. ओके. द फोर्थ वन इज व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन. The fifth one is when other special properties are known. The very first point which is given is when four sides and one diagonal are given. So we are starting with this. So children, we are starting with the first condition, that is when the lengths of four sides and a diagonal is given. That is, here in this exercise you will be given the length of all the four sides of quadrilateral and a diagonal. So whenever this kind of sum is there, when the length of four sides is given and also a diagonal is given, so you will construct the diagonal first. Let's see. Here exercise 4.1, the question number 1 is construct the following quadrilaterals. Now what we will do, read the question first. It is quadrilateral ABCD. Quadrilateral is a closed figure formed with four line segments. तो हमें अभी quadrilateral बनाना है जिसमें first measurement AB दिया हुआ है. AB is equals to 4.5 सेंटीमीटर. That means AB एक side होगा quadrilateral का जिसका measurement है 4.5. Then is BC. It is also a side of quadrilateral 5.5 सेंटीमीटर. फिर CD 4 centimeter and then is AD 6 centimeter. Now if you look at this, AC is different. These four are sides of quadrilateral. Fifth one is AC, that is diagonal AC of 7 centimeter. So in this case you will always construct the diagonal first. So students, let's start by drawing rough diagram. So first we will be constructing AC of 7 centimeter. अब जब भी आप रफ डायग्राम बनाएं तो वैसे तो आप बिना स्केल के भी बना सकते हैं, बट हेयर आई एम यूजिंग स्केल टू ड्रॉ. एंड दूसरी बात, जब भी आप बनाएंगे तो आप इस शेप में बनाएंगे, दैट इज काइट शेप में बनाएंगे ताकि आपको कंस्ट्रक्शन में ईजी रहे. ओके, सो लेट्स बिगिन बाय ड्रॉइंग AC ऑफ 7 सेंटीमीटर. हम 7 सेंटीमीटर का नहीं बनाएंगे क्योंकि हम रफ बना रहे, तो ऐसे ही छोटा सा एक AC बना देंगे 7 सेंटीमीटर का. हमेशा हमारा डायगोनल ऐसे जाना चाहिए हॉरिजॉन्टल वे में. ठीक है. फिर अब बोला है हमको AB ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. A यहाँ पर है, आप चाहें तो B इस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं. अपवर्ड्स ऑफ द डायगोनल और डाउनवर्ड्स, एनी साइड यू कैन टेक. हियर आई एम टेकिंग ऑन दिस साइड. हमने B यहाँ पर ले लिया और हमने ऐसे, रफ है ये इसलिए हम कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, AB को ज्वाइन कर दिया. AB 4.5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू ज्वाइन BC ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. मीन्स दिस इज सपोज BC ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. देन वी हैव टू मूव ऑन CD 4 सेंटीमीटर. C से लेकर D तक ऐसे ही, अभी तो रफ बना रहे हैं तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा. देन AD ऑफ 6 सेंटीमीटर. So this point will be joined and it will be called D. It is of 6 centimeter. Now this one was diagonal of 7 centimeter. Okay. So
कीप इन माइंड दैट डायगोनल इज ड्रॉन फर्स्ट. हमने रफ में भी डायगोनल बनाया, हम जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो भी हम डायगोनल बनाएंगे. नाउ फर्स्ट यू विल टेक अ रूलर एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर आप ड्रॉ करेंगे AC 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा बेस है. अगर बेस नहीं होगा तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम रूलर की हेल्प से यहाँ पर AC ऑफ 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे हम. लेट्स ड्रॉ AC ऑफ 7 सेंटीमीटर. सी चिल्ड्रन, 0 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक आप मार्क कर देंगे एंड आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हो जाएगी AC diagonal. ओके, नाउ वॉट एवर यू हैव ड्रॉन, ये जैसे जैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे हम साथ में स्टेप्स भी लिखते जाएंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप. नाउ आवर फर्स्ट स्टेप विल बी draw AC equals to 7 centimeter because we have drawn with a ruler. तो हमने ड्रॉ किया AC line segment of 7 centimeter. ये हमारा सबसे पहला स्टेप था. So children, now our second step will be we will draw AB of 4.5 centimeter. अब हम AB बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का. क्यों बनाएंगे? बिकॉज इसमें से एक पॉइंट जो हमको चाहिए A, या A चाहिए होती है या B. तो B तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर AC हमने लिखा है, तो हमारे पास A पॉइंट अवेलेबल है, एक एंड पॉइंट अवेलेबल है, तो हम AB बना सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर का. नाउ व्हाट यू विल डू, you will take a compass and a ruler also. अब आप क्या करेंगे, इस रूलर पर 4.5 सेंटीमीटर जहां आता है वहां तक आप राउंडर को एक्सटेंड कर देंगे. दैट इज 0 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक आप अच्छे से राउंडर को एग्जैक्टली खोलना और मेजर कर लेना कि ये 4.5 सेंटीमीटर का है. और अब यहाँ पर सेंटर लेकर, A पर सेंटर लेकर डाउनवर्ड साइड, क्योंकि हमारा रफ डायग्राम में डाउनवर्ड साइड पे जा रहा है B, तो हम यहाँ पर भी डाउनवर्ड साइड में एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. ओके, सी दिस साइड B इज here, so we will draw this side also. यहाँ ऐसे हमने एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर ली. अभी हमको B मिला नहीं है, ठीक है. अभी हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, पर उससे पहले we have to remember that we have to write steps of construction. तो हमने A पर सेंटर लिया और रेडियस हमने लिया था 4.5 सेंटीमीटर और हमने एक आर्क कंस्ट्रक्ट की. So our second step will be with A as center. A को हमने सेंटर लिया and radius 4.5 सेंटीमीटर. We will draw an arc. First we have drawn AC of 7 centimeter. Then the second step will be this. Okay. Now we will be moving towards the third step. अब AB के बाद हमको दिया हुआ है BC लाइन सेगमेंट. हमने B पॉइंट तो ढूंढी नहीं है, तो हमको B पॉइंट को ढूंढने के लिए C को सेंटर लेना पड़ेगा और 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर हम एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो सेम वे जैसे हमने 4.5 सेंटीमीटर तक के लिए राउंडर खोला था, वैसे ही हम 5.5 सेंटीमीटर, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 डॉट्स लगा लीजिए लाइट सी, बिकॉज ये हमको बनाना है डायग्राम, इसलिए हम थोड़ा सा ही हल्का सा ही करेंगे ताकि उसमें ना दिखे. Now this is of 5.5 centimeter. This way you can open the rounder. This way also is right, and if you want to keep like this 5.5 centimeter तक आप राउंडर खोलकर ऐसे भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं this way. Okay. So अब किसको सेंटर लेंगे, C को सेंटर लेकर, क्योंकि B पॉइंट तो है नहीं, C को सेंटर लेकर हम एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे दिस साइड, क्योंकि हमको B पॉइंट ढूंढनी है. तो हम ऐसे एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे जो प्रीवियस आर्क को, हमारी पहले वाली आर्क को मीट करे, इस तरह से बनाएंगे. और जहां पर ये मीट करेगी उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट B. ओके, नाउ लेट्स सी द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो आवर थर्ड स्टेप विल बी विथ C as center and radius 5.5 सेंटीमीटर. Draw another arc to intersect the previous arc at B. पहले वाली आर्क को पॉइंट B पर
हमारी आंख जाके टच करे 5.5 सेंटीमीटर वाली, इस तरह से हमको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड स्टेप. Now we have to start the fourth step. Fourth step will be, you can take this line segment also. आप चाहे तो CD भी बना सकते हैं, आप चाहे तो AD भी बना सकते हैं. क्योंकि A से मुझे पहले स्टार्ट करना है, इट्स माई चॉइस. वैसे हम खुद अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, हम C से भी कर सकते हैं, A से भी कर सकते हैं. तो हेयर आई एम टेकिंग AD फर्स्ट. AD बना रही हूं मैं 6 सेंटीमीटर का. तो उसके लिए मुझे राउंडर को 6 सेंटीमीटर तक ओपन करना होगा. एंड दिस वे 6 पे एक टिप रखेंगे और एक पेंसिल जो है हमारी 0 तक जाएगी. दिस वे यू कैन सी दैट इट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. ऐसे स्ट्रेच करके राउंडर को. और अब हम AD बना रहे हैं तो हमको एक पॉइंट A अवेलेबल है, हम ऐसे रख के एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर. सो द स्टेप्स, लेट्स सी द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो नाउ आवर फोर्थ स्टेप विल बी विथ A एज सेंटर. A को सेंटर लिया एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर लिया. ड्रॉ एन आर्क ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ B. ऑपोजिट साइड ऑफ B मतलब हमने B नीचे की तरफ बनाया था, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ डायगोनल, ठीक है. नाउ द लास्ट स्टेप इज व्हाट यू हैव टू डू. विच लाइन सेगमेंट इज लेफ्ट नाउ? दिस वन. हमने सब बना दिया, AD भी बना दिया. अब CD बनाना है ताकि हमको पॉइंट D मिल जाए, लोकेट कर सके हम. तो CD हमको चाहिए 4 सेंटीमीटर का. अब हम स्केल को रखेंगे और राउंडर को 4 सेंटीमीटर तक खोल देंगे, लाइक दिस. 4 पर एक एंड और एक हमारा 0 पर. ओके, 4 सेंटीमीटर तक हमने खोल दिया. अब हमको C पर सेंटर लेना है क्योंकि D पॉइंट तो हमारे पास है नहीं, D हमको मिली नहीं है अभी तक. तो हम C पर सेंटर लेकर और एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि वो पहले वाली आर्क से जाकर मिले. और ये वाली पॉइंट जो मिली है हमको, वो हो जाएगी हमारी पॉइंट D. और जो कहा गया था फोर्थ स्टेप में, दैट B के अदर साइड पर हमको बनाना है. B डाउनवर्ड्स है तो हमको ऊपर की साइड बनाना है, अपवर्ड्स, ऑन द अपवर्ड साइड ऑफ डायगोनल. Children, our fifth step will be with C as center and radius 4 सेंटीमीटर. हमने C पे सेंटर लिया और 4 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड किया राउंडर को. ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट D. C पर सेंटर रखकर 4 सेंटीमीटर तक राउंडर को खोलकर और हम पहले वाली आर्क से जाकर टच करें, इस तरह से हम बनाएंगे ताकि हमको पॉइंट D मिल जाए. नाउ टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल. सारी पॉइंट्स तो हमको मिल गई हैं. अब फाइनली क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, A से लेकर B तक जो पॉइंट है उसे हम ज्वाइन कर देंगे. सो वी विल राइट ज्वाइन AB, देन वी विल ज्वाइन BC, ओके, देन वी विल मूव टू ज्वाइन CD like this. अब लास्ट में हम ज्वाइन कर देंगे दिस AD. ओके, by this way we can get the quadrilateral required. और इस पे आप measurements भी लिख देंगे that AB was of 4.5 centimeter, then BC was 5.5 centimeter, then CD was of 4 centimeter, and this one was 6 centimeter. Here diagonal was also given 7 centimeter. With this we finish our construction, but the last step will be join AB, then BC, CD and DA, and at last you will have to write thus ABCD is the required quadrilateral. All these steps are very necessary to write. In every construction you will have to write these steps. और हमेशा मोस्टली ये सेम ही रहते हैं. जिस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस एक्सरसाइज को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी वे में ये रहेंगे. जैसे अभी हमारा डायगोनल पे बेस्ड है कंस्ट्रक्शन, तो ऑल दीज स्टेप्स विल बी सेम फॉर ऑल द 4 सम्स. ओनली द नेम्स विल बी चेंजिंग, पैटर्न विल रिमेन सेम. And the second sum in 4.1 exercise is quadrilateral JUMP. Here
JU is 3.5, UM is 4 centimeter, MP is 5 centimeter, PJ is 4.5, PU is 6.5. अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायगोनल दिया हुआ है? सो सी, अगर कंटिन्यूएशन में है लेटर्स जो इधर दिए हुए हैं कंटिन्यूएशन में है तो वो साइड होगा. जैसे JU इज अ साइड. देन UM कंटिन्यूएशन में है UM. ठीक है. फिर MP, M से लेकर P तक भी एक साइड बन जाएगा. PJ, P और J को ज्वाइन कर देंगे तो वो भी एक साइड हो जाएगा. नाउ PU, U और P का कोई कनेक्शन नहीं है, वो दोनों साथ में नहीं आ रहे हैं, ना ही एक दूसरे के बाद आ रहे हैं. P के बाद जैसे यहाँ पर J आ रहा है. ओके, तो हम समझ जाएंगे कि दिस वन इज अ डायगोनल. PU इज अ डायगोनल. नाउ व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल ड्रॉ PU डायगोनल. दिस इज द रफ स्केच. मैं सिर्फ रफ स्केच बता रही हूँ आपको करना खुद है. ओके, सो PU diagonal will be drawn of 6.5 centimeter. This is just a rough sketch to help you out. Okay, now JU 3.5. अब हमारे पास J तो अवेलेबल नहीं है, बट U एक एंड पॉइंट है जो इस डायगोनल पर आ रही है. सो दिस साइड यू कैन टेक J और ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे. दिस विल बी JU. ओके, और जो हम करते जाएंगे वो हम लिखते भी जाएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में. नाउ UM, U अवेलेबल है तो M इस साइड आएगा क्योंकि U के साथ तो P यहाँ पर कनेक्टेड है, U के साथ J यहाँ पर है तो M इस साइड आ जाएगा. ओके, सो UM विल बी ज्वाइंड ऑफ 4 सेंटीमीटर. देन इज MP. अब M हमारे पास आ गया है, M से लेकर P तक को ज्वाइन कर देंगे तो हमको आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. देन इज PJ 4.5 सेंटीमीटर. इस तरह से पहले रफ डायग्राम बना देंगे और उसकी बेसिस पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. सो यू विल फॉलो ऑल द स्टेप्स taught you in sum number 1 and you will write accordingly. Now the third sum of 4.1 is parallelogram MORE. MORE is a parallelogram. ये क्यों दिया गया है? इसके लिए एक रीजन है. पैरेललोग्राम क्यों दिया गया है? Why it is mentioned? See, let us see. OR एक साइड बन जाएगा. ठीक है, और RE भी एक साइड बन जाएगा. E से लेकर O तक का डिस्टेंस जो है बीच में R आ रहा है. दैट मीन्स कि E और O का कोई कनेक्शन नहीं है. E और O जो दिया हुआ है, EO साइड इज अ डायगोनल. ये जो लेंथ दी हुई है वो एक डायगोनल की लेंथ है. प्रोसेस वही रहेगा, मेथड वही रहेगा जो फर्स्ट सम में हमने किया था. बट पैरेललोग्राम में एक कंडीशन होती है कि ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं हमारे पैरेललोग्राम के आर सेम. ऑपोजिट साइड्स आर सेम, दैट इज ऑफ इक्वल लेंथ. तो अभी हमने पैरेललोग्राम बना दिया. सपोज EO हमने एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया, उसका हमने लेंथ ले लिया 7.5 सेंटीमीटर. और E से जो जॉइंट हो रहे हैं, जैसे OR, O से लेकर R तक का ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर. एंड RE भी हमको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर. मीन दिस मच इज गिवन. अब हमारे पास क्या मिसिंग है? MORE में से ORE दिया हुआ है. दैट मीन्स ओनली वन पॉइंट इज मिसिंग, दैट इज M. अब M और E को ज्वाइन कर देंगे और जितना OR का मेजरमेंट है OR के सामने वाले साइड का भी उतना ही होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स आर सेम. तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है. और OR का जितना मेजरमेंट है उतना ही उसके सामने वाले का मेजरमेंट हो जाएगा, सामने वाले साइड का, ऑपोजिट साइड्स का. नाउ दिस RE इज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. तो RE के सामने वाला साइड है MO. नाउ दिस वन इज 4.5, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा. सो 4.5, 6, 4.5, 6. अब हमको सब मिल गए हैं मेजरमेंट्स. दैट इज अभी हमको OM का भी मिल गया मेजरमेंट, कितना है 4.5 सेंटीमीटर. एंड ME कहें या EM कहें, उसका भी मिल गया हमको, दैट इज 6 सेंटीमीटर. ऑन दिस बेसिस यू विल कंस्ट्रक्ट द parallelogram MORE. Okay, this will be your task. So children, let's see the fourth sum
of exercise 4.1, that is rhombus BEST. Rhombus BEST is given and you are given this information. BE is equals to 4.5 centimeter, ET is equals to 6 centimeter. अब आप कंस्ट्रक्ट खुद करेंगे. Just I am showing you the rough diagram to make easy for you. Now BE को देखें तो वो एक साइड बन रहा है क्योंकि कंटिन्यूएशन में है दोनों. देन ES एक साइड होगा, ST एक साइड होगा और TB एक साइड होगा, या BT एक हम बोल सकते हैं साइड होगा. बट हेयर यू आर गिवन दिस ET. सो E से लेकर T तक हम ज्वाइन करेंगे तो हमको एक डायगोनल मिलेगा. दिस विल बी अ डायगोनल. सो अब हमारे पास एक डायगोनल है और एक साइड है, तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सो यू हैव टू रिमेंबर अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. दैट इज, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, ऑल साइड्स आर इक्वल. दैट इज रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं. इसीलिए अगर हमको एक साइड की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम सारे साइड्स का वही मेजरमेंट रख देंगे जितना दिया हुआ है एक साइड का. हेयर BE 4.5 है तो सारे साइड्स 4.5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे. सो प्रोसेस वही रहेगा. आप एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे पहले जिसका नाम है ET 6 सेंटीमीटर का. दिस इज द रफ डायग्राम जस्ट टू शो यू कैसे करेंगे आप कंस्ट्रक्शन. सो पहले आप ET डायगोनल बना देंगे, फिर आप BE साइड बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का. E पे सेंटर रख के एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा BE साइड. कब मिलेगा? जब यही 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आप T पर सेंटर लेकर एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दिस विल बी पॉइंट B. पहले वाली आर्क को ये जो आर्क मिल जाएगी तो दिस विल बी पॉइंट B एंड दिस साइड विल ऑल्सो बी ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. सेम वे से अब हमारा BE मिल गया है हमको, T भी है हमारे पास, S नहीं मिला है. तो E से लेकर S तक भी हम 4.5 रेडियस रखेंगे और एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड इधर से भी हम 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर T पर सेंटर रखकर एक आर्क जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा पॉइंट S. एंड thus we will join all these sides by scale. कंस्ट्रक्शन करेंगे. दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम to show you. Construction will be your homework. Okay children, with this we complete exercise 4.1. So children, I hope you have understood the first exercise very well, and we will be continuing with the next exercise in our next video. Thank you.